So, good morning, everyone. So, again, we are here with the Indian Evidence Act with a new section that is Section 24. Again, very important sections. So, let's elaborate first what these sections talk about, like Section 24, 25, 26. 24, 25, 26. Actually, these sections are exclusionary sections. These sections exclude the confession. Means these sections talk the situation or elaborate the situation wherein the confession shall not be taken into consideration. Like if the confession is caused by inducement, threat या promise. कोई कन्फेशन आपने किसी को धमकी देके कन्फेशन करवा लिया, किसी को इंड्यूस करके कन्फेशन करवा लिया, किसी को प्रॉमिस करके कन्फेशन करवा लिया, then it shall not be admissible. It shall be inadmissible. So you have to keep it to mind. Likewise, if confession is made before police officer, then also it shall not be taken into consideration. 26, if you are making any confession while you are in police custody, so in such situation also it shall not be एडमिसिबल. ठीक है, तो कई बातें हम लोग सीखेंगे, समझेंगे कन्फेशन की किस किस सिचुएशन में नहीं माना जाता है ना. तो सबसे पहले 24 के बारे में हम लोग देखते हैं, 24 को डिस्कस करते हैं, इलेबोरेट करते हैं. 24 में भी कई चीजें हैं, उसको भी हम जानेंगे. क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे 25, 24, 26 से. 24 में हम देखेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो जाता है. समटाइम जुडिशियल कन्फेशंस आर देयर, so you need to understand the difference between judicial confession and extrajudicial confession, है ना. तो अब आई थिंक पहले हम लोग बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कन्फेशन. दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्फेशन एंड एडमिशन, तो दोनों में फर्क और डिफरेंस बताने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, लेकिन और थोड़ा आगे एक स्टेप आगे इससे हम चलेंगे. पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज हम देख लेते हैं. A confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat or promise. Confession किसी accused person ने दिया है, वो irrelevant होगा criminal proceeding में अगर कोर्ट को ये लगता है कि भैया जो कन्फेशन ये दिया है कहीं ना कहीं इस पे दबाव था, थ्रेट मिली थी इसको, या कोई चीज इसको इससे प्रॉमिस की गई थी. मतलब इससे प्रॉमिस किया गया था कन्फेशन कर दो तुम्हारी सजा कम कर देंगे, या तुम कन्फेशन कर दोगे तो तुम्हें देश से बाहर भगा देंगे, तुम छूट जाओगे. मतलब इस तरीके से झूठा प्रॉमिस करके आपने उससे कन्फेशन करवा लिया, धमकी देके कन्फेशन करवा लिया, है ना. तुम कन्फेस कर लेना कोर्ट में, नहीं तो मार डालूंगा तुम्हारे भाई को या फादर को, जो भी है. So if the confession has been caused by inducement, threat or promise, so and court thinks and it appears to the court that the confession has been caused by the inducement, threat or promise, so in such situation it shall not be admissible. Having reference to the charge against the accused person, ठीक है, having reference to the charge against the accused person means जो भी whatever the charge has been framed against that accused person, so the accused person has made the confession relating to that charge, but actually the confession has been caused by the threat or inducement or promise, so it shall not be taken into consideration. हमेशा आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो चार्ज लगता है कन्फेशन उसी के बारे में तो किया जाएगा ना. मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा, चोरी का चार्ज लग गया, मेरे पे मर्डर का चार्ज लग गया, तो उसी के बारे में मैं कन्फेस कर रहा हूँ ना. Proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear in him to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of temporal nature in reference to the proceeding against him. ठीक है, वो ये कह रहे हैं by proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds on which would appear to him reasonable for supposing that by making it would have gained any advantage or avoid any evil of temporal nature. ठीक है, यानी कि तो वो किसी पर्सन की अथॉरिटी में था और एक पर्सन की अथॉरिटी में था, जिसकी अथॉरिटी में था उससे वो मतलब कन्फेशन करवा लिया वो बंदे ने, और उसे कहा कि तुम्हें गेन होगा, एडवांटेज होगा. तो इस तरीके से आप कन्फेशन करवाते हो तो कहीं ना कहीं वो गलत है और इनएडमिसिबल हो जाएगा. सो law, if you talk about the provisions relating to law, you may say substantive law जो confession से related substantive जो law है
वो आपके सेक्शन 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एविडेंस एक्ट में हम लोग पढ़ेंगे. दीज सेक्शंस आर एक्चुअली रिलेटेड टू द कन्फेशन. यू हैव टू कीप इट टू योर माइंड. सेकेंड जो प्रोसीजर लॉ है वो आप सीआरपीसी का अगर आपको ध्यान में आ रहा हो, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में आपने पढ़ा होगा 163, 164 मजिस्ट्रेट जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है एक्यूज पर्सन कन्फेशन दे रहा होता है. यू रिमेम्बर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में 164, 364, 533 of the code of criminal procedure. So these provisions are relating to confession. सीआरपीसी में आपको मिलेगा प्रोसीजर लॉ कैसे कन्फेशन किया जाता है, मजिस्ट्रेट को पावर है ना, मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन किया जाता है, वो सब प्रोविजन आपको यहाँ मिल जाएंगे. तो यू हैव टू कीप इनटू योर माइंड दीज सेक्शंस. एविडेंस एक्ट में हम बात करें तो 24 से लेकर 30 तक कन्फेशन के बारे में बात करता है. सीआरपीसी की बात करें तो 163, 164, 364, 533 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करें. याद रखना है ये चीजें. ये हमने एक चीज अपने को बता दिया. ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग. सो काइंड ऑफ कन्फेशन की बात करें, अभी मैं इस पे थोड़ी देर में आऊंगा जुडिशियल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में. बट बिफोर दैट कुछ बेसिक चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है. पहले तो मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं. कंडीशन फॉर रिलेवेंसी ऑफ ए कन्फेशन. जब भी व्हेनेवर यू सी द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कन्फेशन, यू हैव टू राइट डाउन द कंडीशन फॉर रिलेवेंसी ऑफ कन्फेशन. यानी कि यू हैव टू मेंशन द कंडीशन कि कब कन्फेशन जो है रिलेवेंट होगा, कब कन्फेशन जो है मतलब माना जाएगा किसी के द्वारा, अगर एक्यूज्ड के द्वारा कन्फेस किया गया तो, है ना. तो may I say whatever the provisions are mentioned under section 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो मैं अगर नहीं करके बोल दूं तो वो सब सिचुएशन ऐसी मानी जाएगी कि हाँ भैया रिलेवेंसी रखेगी. जैसे मतलब 24 में हमने पढ़ा कि अगर कन्फेशन, इफ कन्फेशन इज कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, देन इट शैल बी इनएडमिसिबल. ये हमने पढ़ लिया. अब इसी को अगर आपको ये बताना है कि कब कन्फेशन रिलेवेंट होगा, तो आप ऐसे बोल दो कि इट शैल नॉट बी कॉज्ड बाय द इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस. इट शैल नॉट बी मेड टू एनी पुलिस ऑफिसर. ऐसे बोल दो, नहीं करके बोल दो, नॉट करके बोल दो, वही कंडीशन हो जाएगा, ठीक है. तो पहला कंडीशन कि कब कन्फेशन रेलिवेंट होगा, पहला है इट मस्ट नॉट बी कॉज्ड बाय थ्रेट और इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस, जो सेक्शन 24 में हमने आपको दिखाया. अभी 25 वाली बात आप कर दोगे, इट मस्ट नॉट बी मेड टू द पुलिस ऑफिसर. अभी 25 हम लोग पढ़ेंगे. इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी व्हेनेवर कन्फेशन इज मेड टू एनी पुलिस ऑफिसर, इट शैल नॉट बी एडमिसिबल, ठीक है. लेकिन फिर वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27 भी है. 27 भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कहीं ना कहीं 25 से कनेक्टेड है. 25, 27, 25, 26, 27 ऑल दीज सेक्शंस आर इंटरकनेक्टेड. बट कोई किसी सेक्शन को गवर्न नहीं करता, लेकिन हाँ आपको एक दिमाग में साथ में लेके चलना पड़ेगा. ऐसे 26 के बारे में बता देना, इट मस्ट बी मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट. 26 कहता है कि पुलिस कस्टडी में अगर बनाया गया है, कन्फेशन दिया गया, तो वो भी नहीं मानने. तो ऐसे करके आप लिखोगे तो वही यही सब कंडीशंस है कि अगर ऐसा है तो वो फिर रेलेवेंस होगा, कन्फेशन रेलेवेंट रखेगा. It must be made after impression caused by any inducement etc. has been fully removed. Section 28 में हम लोग देखेंगे. The confession of an accused is relevant only against himself, subject to section 30. Section 30 में देख लेंगे. और ये भी एक कंडीशन आप लिख देंगे कि it confession of an accused is relevant only against himself, है ना. कन्फेशन जो होता है उसी के खिलाफ जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी किसी के खिलाफ जो है नहीं इस्तेमाल किया जाता कन्फेशन, ठीक है. मैं कन्फेशन दे रहा हूँ, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ ना, मैं गिल्ट फील कर रहा हूँ, मैंने कहा साहब गलती से मार दिया था, मैंने उसको मारा, ऐसे आप गिल्ट फील करके बोल लो, ठीक. तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी. अब आते हैं हम कन्फेशन में जुडिशियल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. सो आई थिंक अगर मैं बताऊं भी नहीं तो you may understand what actually it means. Judicial confession means what? If confession is made to the magistrate or to the court, है ना. If confession is made in the immediate presence of the magistrate or before any court, then it shall be called as judicial confession. Very simple. Extrajudicial confession means magistrate और court के सामने छोड़ के, उनको छोड़ के कहीं और आपने confession किया. Means if you have made confession before the person other than the court or magistrate, then it shall be considered as extrajudicial confession. Very simple. इसमें कोई confusion है. Judicial confession वो जो section 163, 164 वो जो section मैंने आपको दिखाया CRPC में, वो provisions है. 164 में सिर्फ वो मजिस्ट्रेट को पावर है कि उनके सामने मजिस्ट्रेट जो है आपके कन्फेशन को नोट डाउन करता है.
है ना, आपको अगर याद आ रहा हो उसको कनेक्ट कर लेना, पढ़ लेना आप उसको, सीआरपीसी के प्रोविजंस को। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में किसी के सामने आपने कन्फेस किया, डॉक्टर के सामने आपने कन्फेस कर दिया, किसी और पर्सन के सामने कन्फेस कर दिया, मतलब ना। जुडिशियल कन्फेशन जो होता है कि लीगल प्रोसीडिंग चल रही होती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही होती है और मजिस्ट्रेट के सामने आप कन्फेस करते हो, दैट इज ऑल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में अपार्ट फ्रॉम द लीगल प्रोसीडिंग्स यू हैव मेड कन्फेशन टू एनी अदर पर्सन, है ना। तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा, बहुत ही सिंपल है। और अनडाउटेडली जुडिशियल कन्फेशन हमेशा एडमिसिबल होता है ना। क्या होता है जी? एडमिसिबल होता है। इट इज ऑलवेज एडमिसिबल इन एविडेंस। मैं यहाँ पे लिख दूं एडमिसिबल in evidence. They may ask in the question in the examinations, what is the evidentiary value of extrajudicial confession? What is the evidentiary value of judicial confession? Likewise, so you must remember कि evidentiary value क्या है judicial confession की, अगर judicial confession दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप यही सब बातें लिखोगे कि it is a relevant fact है ना। Judgment of conviction can also be based on confession if it is found to be truthful, deliberate and voluntary, and if clearly proved. Voluntarily nature of the confession depends on whether there was any threat, inducement or promise, and its truth is judged on the basis of entire prosecution case. So you will write down each and everything. 24 को कोट करोगे कि भैया जुडिशियल कन्फेशन है, बट बीइंग ए जज हैज टू चेक इट आउट वेदर द कन्फेशन हैज बीन मेड voluntarily or not, and whether it is caused by the inducement, promise or threat or not. So being a judge, the judge has to check all these things. अगर वो कन्फेशन जज के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट में बिना किसी इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस या थ्रेट के, है ना, दिया गया, किसी दबाव में नहीं दिया गया, तो ऑब्वियसली इसकी एविडेंशियल वैल्यू है, ये एडमिसिबल होगा इन एविडेंस। तो ऐसी सारी बातें आप लिखोगे कि एविडेंशियल वैल्यू जब पूछा जाए आपसे, एविडेंशियल वैल्यू जुडिशियल कन्फेशन का क्या है। एक आप केस लिख सकते हो कि स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, यस्टरडे आल्सो आई कोटेड दिस केस, स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस Navjot Sandhu. So first time it was said in this case that what is the difference between admission and confession? कन्फेशन हमने आपको बताया था, कन्फेशन उसे कहते हैं जब आप कन्फेस करने से आपको सजा मिल जाए, उसी के कन्फेशन से सजा आपको मिल जाए। एडमिशन करने से आपको सजा नहीं मिलती। एडमिशन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप गिल्टी माइंड हो, आपने जुर्म किया। एडमिशन का मतलब हाँ कोई फैक्ट है उसको आप एडमिट कर रहे हो, एक्सेप्ट करो, हाँ ऐसा हुआ था, हाँ मैं उसके घर गया था 12 बजे, तो थोड़ी मैंने मर्डर किया, मैंने गया था, मैं एडमिट कर रहा हूँ, एडमिशन हो गया। लेकिन हाँ मैं उसके घर गया था, उसको मैंने जहर दिया, मैंने उसको मारा, ये आपका कन्फेशन हो गया। तो इसके बेसिस पे आपको सजा हो सकती है, आपको मर्डर की चार्ज में सजा मिल सकती है। तो ये फर्स्ट केस था जिसमें ये ऑब्जर्व किया गया था। और इसी में ऑब्जर्व किया गया था कि जो कन्फेशन होता है ये हाईली रिलायबल कंसिडर किया गया है। वो जाहिर सी बात है हाईली रिलायबल है ही है ये। भाई अगर कोई बंदा कोर्ट में खड़े होकर ये कह रहा है कि साहब मैंने उसका मर्डर किया था, तो ऑब्वियसली बात है मैं बीइंग ए जज क्या समझूंगा, ठीक है भैया मर्डर। कोई इंसान अपने अगेंस्ट में क्यों बोलेगा? आप सोच के देखो, कोई बंदा है, व्हाई ए पर्सन विल स्पीक अगेंस्ट हिमसेल्फ, व्हाई ए पर्सन विल स्पीक अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट? हाँ अनलेस इट हैज थ्रेट और प्रॉमिस। जब तक ये भी मैं देखूंगा कि हो सकता है इसमें कोई दबाव हो, कोई मतलब इंड्यूसमेंट है या किसी ने धमकी दिया है, किसी ने कुछ प्रॉमिस किया, ये भी मैं चेक करूंगा। लेकिन अगर कन्फेशन दिया है तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाईली रिलायबल है, इस पे भरोसा किया जा सकता है और पक्का सबूत होता है ये ना, उसकी बेसिस पे कन्फेशन इतना। और ये भी लिखोगे कि नो रैशनल पर्सन वुड मेक एडमिशन against his interest unless prompted by his conscience to tell the truth. मैं यही समझूंगा बीइंग ए जज कि हो सकता है भैया इसका दिल गवाही कर रहा है, इसका दिल नहीं मान रहा है, अपने दिल से ये कन्फेशन कर रहा है, अपने अगेंस्ट में नहीं तो क्यों बोलेगा अपने अगेंस्ट में कोर्ट में खड़े होकर, जब ये जानता है कि ये बोलने से इसको सजा मिल जाएगी। तो मानूंगा, मैं यही मानूंगा कि वो सही है, सत्य बोल रहा है। इसलिए इसकी जो है रिलाई करने लायक है। जो जुडिशियल कन्फेशन होता है वो रिलायबल होता है, हाईली रिलायबल, हाईली आप बोलिएगा, हाईली रिलायबल है, ठीक है। तो साथ साथ ये भी मेंशन करिएगा कि आपको ये भी चेक करना है कि कन्फेशन बाय होप और प्रॉमिस ऑफ एडवांटेज, रिवॉर्ड और इम्यूनिटी और बाय फोर्स और बाय फियर इंड्यूस्ड बाय वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस कैन नॉट कंस्टिट्यूट एविडेंस अगेंस्ट द मेकर ऑफ द कन्फेशन।
कोई भी कन्फेशन आपको लालच दिया गया है, होप दिया गया है, आपको प्रॉमिस ऑफ एडवांटेज दिया गया है कि तुम्हें होप दे दिया गया कि मतलब तुम कर देना कन्फेशन, मैं तुम्हें बचा लूंगा या तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा, इस तरीके से उसको होप दिया गया था, तो वो भी गलत है। फिर ऐसे कन्फेशन को फिर आप उसके अगेंस्ट भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहीं माना जाएगा। रिवॉर्ड, कुछ इम्यूनिटी उसको प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ इनाम उसको दोगे, कन्फेस कर लेगा तो फोर्स की हो आप, फियर उसको दिखा रहे हो, डर दिखा रहे हो कि कर लो नहीं तो ये है वो है, तुम फंस जाओगे, फिर बाद में कुछ नहीं होगा, इस तरीके से आप बोल के उसको कन्फेशन करवा ले रहे हो। ठीक है। एक एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स होता है, एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स और नॉट कन्फेशंस। एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है कि आप clear cut, you are not going to confess the clear cut, rather you are just trying to manipulate the things. Means if you have murdered to someone, if you say like this that I murdered him but actually I did in self defense, he was trying to beat me or he was trying to shoot me, so that's why in reverse, in defense, just to defend myself, I hit him with the axe. Let's say some axe or hammer is there, so I hit him with the hammer. You are saying like this कि मैंने भैया वो मुझे सर मार रहा था तो मैंने अपने बचाव में उसको मार दिया, तो इस तरीके का कन्फेशन नहीं माना जाएगा। दिस इज नॉट अ कन्फेशन, दिस इज एक्सप्लेटरी स्टेटमेंट्स एंड एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स आर नॉट द कन्फेशन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। एक्सप्लेटरी स्टेटमेंट इसको कहते हैं। तो अगर आप कहते हो एक्यूज एडमिट्स करता है किलिंग का, लेकिन वो असर्ट्स करता है, बट ही असर्ट्स आल्सो दैट आई वाज डन इन सेल्फ डिफेंस, ये कन्फेशन नहीं है, इस तरीके का कन्फेशन नहीं माना जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बात आप। ये हमारा हो गया। और आपको इनकल्पेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए ना, इनकल्पेटरी होना चाहिए। इनकल्पेटरी मतलब डायरेक्ट आप कह रहे हो हाँ मैं नहीं मारा था, इनकल्पेटरी हो गया। अब हम कन्फेशन नॉट मेड टू पुलिस ऑफिसर वाला और कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर, वो हम 26 में समझेंगे और एक साथ समझ लेंगे, ठीक है। कन्फेशन एंड आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक साथ आप देख सकते हो। आप सोच रहे हो मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, हाउ दिस आर्टिकल इज रिलेवेंट अंडर दिस टॉपिक। तो ऐसे रिलेवेंट है कि कन्फेशन इज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट, ये तो आपको पता है। Normally, nobody would like to admit his guilt as he is fully aware that same would be used against him. That part, there is constitutional right for the accused that he shall not be subjected to any testimonial compulsion. Article 20 sub-article 3 of the Constitution, accused person has a protection from being compelled to be a witness against himself. Self-incrimination वाला आपने पढ़ा होगा 20 में, है ना, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 में। तो इसमें कह रहे हैं एक्यूज पर्सन हैज ए प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कि किसी भी एक्यूज्ड को आप उसके खिलाफ में उसी को विटनेस नहीं बना सकते, उसको कंपल्जन नहीं दे सकते, बाय फोर्स उसको नहीं बना सकते। ये आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 में मेंशन है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा रिलेट कर दिया। आते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में। सो दिस इज ऑल अबाउट द जुडिशियल कन्फेशन। बेसिकली सिंपली आपको ऐसे लिखना है कि कोर्ट के सामने करना है, कन्फेशन किया, वो हाईली प्रोबेबल होता है, हाईली रिलायबल होता है। जज हैज टू चेक इट आउट वेदर इट हैज बीन कॉज्ड बाय द इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस और नॉट, किसी इम्यूनिटी फोर्स की वजह से तो नहीं ये कर रहा है। अगर नहीं किया है, सिंपल है, तो वो एक्सेप्टेबल है, एविडेंस माना जाता है जुडिशियल कन्फेशन के द्वारा। जुडिशियल कन्फेशन अगर है तो ये सब बातें आप लिखोगे। अब हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में आते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में क्या होता है कि भाई कोर्ट और मजिस्ट्रेट के अलावा किसी और के सामने कन्फेस करता है कि इस पर्सन, तो उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। जुडिशियल कन्फेशन तो लीगल प्रोसीडिंग चल रहा होता है, प्रोसीडिंग के दौरान, जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा होता है, उसके दौरान कन्फेशन करता है, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में ऐसा नहीं है ना। अच्छा, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन और जुडिशियल कन्फेशन, दोनों कन्फेशन ओरल भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकते हैं, सिंपल है। अब ये प्रूव करने के लिए कि ओरल एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन द पर्सन टू हुम इट वाज मेड बाय द अक्यूज्ड मस्ट डिपोज टू इट। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है कि टू हुम द अक्यूज्ड पर्सन हैज मेड द कन्फेशन, वो जो दूसरा बंदा वो कितना रिलायबल है, उस पर भरोसा किया जाता है कि नहीं किया जा सकता है। यानी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मतलब क्या कि एक्यूज्ड पर्सन किसी और के सामने कन्फेस किया होगा,
है ना, हॉस्पिटल में लेटा हुआ था, पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया उसे, किसी का मर्डर वर्डर किया होगा उसने, तो पुलिस ने दौड़ा के पकड़ा, चोट वोट लगी थी, पुलिस वालों ने उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। अब हॉस्पिटल में वो लेटे लेटे डॉक्टर से जो कुछ भी कहेगा, डॉक्टर से मान लिया कन्फेस कर रहा है, तब डॉक्टर पूछेगा ऐसे बातों बातों में, भैया क्यों तुम ऐसा किए, काम क्यों मारे, ये वो क्या किए तुमने, तो बोल दिया कि मैंने ही उसको मारा है और ऐसे भाग रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया, लाइक ही विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, मींस ही इज डूइंग कन्फेशन। तब डॉक्टर के सामने वो कन्फेस किया ये बात। तो अब डॉक्टर की रिलायबिलिटी कितनी है, डॉक्टर कैसे किस सिचुएशन में कितना आके क्या कहता है, वो डिपेंड करता है ना। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में भी ठीक है, थोड़ा सा वीक है, मैंने कहना ये चाहता हूं मैं कि जुडिशियल कन्फेशन मोर स्ट्रॉन्गर प्रूफ, मोर स्ट्रॉन्गर एविडेंस, वेयर एज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो होता है थोड़ा सा कमजोर टाइप का एविडेंस होता है ना। हो सकता है कि इसने डॉक्टर से कुछ कहा हो, डॉक्टर कुछ और मैनिपुलेट करके आके बोल रहा है कोर्ट में, डॉक्टर बिक गया है, अपोजिट पार्टी ने उसको खरीद लिया, समथिंग लाइक इट मे बी मैनिपुलेटेड इजिली। तो जिसके सामने वो कन्फेस किया था वो कितना रिलायबल है, वो कैसा है बंदा, वो डिपेंड करता है उस पर। तो आप एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में यही सारी बातें लिखेंगे कि if it is contained in a document made by the prisoner or by someone else who heard the statement, the document must be produced or its non-production accounted for to make secondary evidence of the contents of the document admissible। एक चीज और, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ऐसा नहीं ओरली भी हो सकता है, बाय डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि दोनों, चाहे जुडिशियल हो कन्फेशन हो, जुडिशियल कन्फेशन हो चाहे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो, बोथ में भी डन ओरली और डॉक्यूमेंट्री। अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन डॉक्यूमेंट्री बनाया गया तो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया जाएगा कोर्ट में, है नहीं। अगर ओरली कहे गए, किसी के सामने कहा गया था इसको, तो उस बंदे को बुलाया जाएगा कि क्या कहा था तुम्हारे सामने, क्या बोला था। नानावटी केस, you might have heard Nanavati case, and also one Rustam movie has come on this story। नानावटी ने जब उसका मर्डर कर दिया बंदे का, तो उसको मारने के बाद उसने कुछ कहा था, जो गेट कीपर था उससे कुछ कहा था, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो वो गेट कीपर को बुलाया जाएगा, भैया तुमसे क्या कहा था जब निकल रहा था, तुमसे कुछ कहा था, वो बोलेगा हाँ साहब ये कहा था कि उसको मार दिया मैंने, तो वो जो भी बोलेगा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर वो अदर कोऑपरेटिव एविडेंसेस को मैच करके, स्टेटमेंट मेड बाय द अक्यूज्ड नानावती टू द चौकीदार ऑफ द बिल्डिंग इमीडिएटली आफ्टर द शूटिंग was held to be an extrajudicial confession and treated as a direct piece of evidence of the guilt of the accused, so it was treated as a direct evidence। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ये होता है। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, इसको इनकल्पेटरी होना चाहिए और मस्ट गिव सब्सटेंशियल डिटेल्स ऑफ द मैनर ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। हाँ शर्मनी, यति इंपॉर्टेंट क्लास थी, आप लोगों ने लेट कर दिया, गलत बात है। तो इनकल्पेटरी होना चाहिए एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एंड वन मोर थिंग कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन should contain each and everything, means should contain the details of the commission of the crime। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन तब माना जाएगा मतलब आप उसको क्राइम के बारे में उसमें कुछ बोल रहा हो, एक्यूज्ड डिटेल में बोल रहा हो कि कैसे मैंने मर्डर किया, क्या किया, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में ये हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस राजा राम में ये हेल्ड किया था दैट इट इज नॉट ओपन टू एनी कोर्ट टू स्टार्ट विद अ प्रिजम्पशन दैट एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज अ वीक टाइप ऑफ एविडेंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो कोर्ट को ये प्रिज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि ये वीक टाइप एविडेंस है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है तो इसका मतलब नहीं कि हमेशा वीक ही होगा, डिपेंड करता है सिचुएशन सर्कमस्टांसेस पे, किस तरीके का केस है, किस सिचुएशन में एक्यूज ने कन्फेस किया था, किस सिचुएशन में एक्यूज ने बात कही थी, किससे कही थी बात, जिससे कही थी बात उस पे क्या रिलायबिलिटी, उसका मेंटल लेवल क्या है। अब हाँ कोई बात नहीं शर्मा, अब भाई जाहिर सी बात है कि अगर एक एक्यूज मर्डर करने के बाद किसी पागल से कुछ कह दिया हो, अब उस पागल पे क्या भरोसा कर सकते हो आप, पागल तो कुछ भी बोल सकता है ना। तो डिपेंड करता है केस पे, ऐसा भी नहीं है कि वीकर है, लेकिन हाँ ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ जुडिशियल कन्फेशन इट इज अ वीकर एविडेंस। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की एविडेंटरी वैल्यू आएगी आपके सामने क्वेश्चन में, तो आप यही सब मेंशन करोगे कि एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मस्ट बी जज्ड इन द फैक्ट सिचुएशन ऑब्टेनिंग इन ईच केस। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं आपको बता दूं, अलग अलग सिचुएशन होते हैं, किस सिचुएशन में कन्फेशन किया गया था, वो सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए ही इसकी एविडेंटरी वैल्यू को तय किया जाता है।
It would depend not only on the nature of the circumstances but also the time when the confession had been made and the credibility of the witness who testifies thereto. जिसके सामने वो कहा गया था वो विटनेस की क्या क्रेडिबिलिटी है उसकी, वो झूठ बोल सकता है या नहीं बोल सकता है या सच बोल रहा है? बहुत सारी बातें। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड इन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस राजा राम, ये मैंने आपको बता दिया। तो एविडेंशियल वैल्यू आप इसमें लिख दीजिएगा, लिखने को बहुत है। ठीक है, आई थिंक इतना बहुत हो गया। एविडेंशियल वैल्यू ऑफ कन्फेशन को भी लिख सकते हैं आप। इंड्यूसमेंट, कॉज बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, ये सब लिख दीजिएगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल पे बहुत हो गया, कन्फेशन के बारे में हो गया, 24 के बारे में पढ़ लिया। नाउ 25 के बारे में देख लेते हैं। अब हम सब लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कन्फेशन कब कब नहीं माना जाएगा। तो 24 वी हैव डन। 25 ये भी एक सिचुएशन है, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। ये कह रहे हैं नो कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। तो कह रहे हैं कोई भी अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेस किया गया है, कन्फेशन दिया गया है, तो वो नहीं माना जाएगा। वेरी सिंपल। क्यों नहीं माना जाएगा इसको आई थिंक नहीं भी बताया जाए तो भी आप समझ जाओगे। It is presumed that if the confession is made to the police officer, then it is presumed that the statement may be, you know, pressurized, or the accused person may be pressurized. Accused person जो है अब उसकी पुलिस की कस्टडी में, पुलिस वाला मार रहा है उसको, मार मार के उसके कन्फेशन को बुलवा लिया, तो वो थोड़ी माना जाएगा। हो सकता है कि डर गया और डर के मारे कह दिया पिटना नहीं पड़ेगा, मार खाने बच जाऊंगा, तो इसलिए बोल दिया वो, तो अब नहीं माना जाएगा इसीलिए उसको। इन्फ्लुएंशियल पावर रखता है, एक्चुअली एक डोमिनेटिंग पावर रखता है। पुलिस ऑफिसर इज हैविंग द डोमिनेटिंग पावर ओवर द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड इसकी कस्टडी में हो, अब उससे झूठा मूठा बुलवा लिया तो वो नहीं माना जाएगा इसलिए, है ना। अच्छा, confession made to police officer is inadmissible in evidence except so far as provided under section 27। अब कह रहे हैं कि 27 को छोड़ के, देखिए पहले तो एक जनरल रूल बता रहे हैं कि इफ एनी कन्फेशन इज मेड टू ए पुलिस ऑफिसर इट शैल नॉट बी एडमिसिबल, ये बता रहे हैं। लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन 27, ये आपको ध्यान में रखना। सब्जेक्ट टू सेक्शन 27। What is 27? We will read out later on. Then we will correlate to each section. अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा प्रिंसिपल क्या है इसके एक्सक्लूजन के पीछे। Why the confession before the police officer has been excluded? तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया है कि confession thus made it is untrustworthy, इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। Confession made to the police officer is untrustworthy, ये आप लिख दीजिएगा। Extortion of confession by the police officer by malpractices, malpractice किए जाते हैं, है ना। And to avoid the danger of the admitting false confession, ठीक है। अच्छा, अब 25 और 26 को हम लोग एक साथ देख लेते हैं, मैच करके पढ़ लेते हैं। 26 में एक्चुअली मैं बता दूं क्या है, कन्फेशन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। अब भाई 25 26 में क्या है, देखो 25 में ये है कि कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने कर रहे हो वो इनएडमिसिबल है, irrespective of whether the person who is confessing, who is making the confession, he is in police custody or not। सेक्शन 25 ये कहता है कि अगर आप पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन दे रहे हो तो वो इनएडमिसिबल है। आप चाहे पुलिस कस्टडी में हो चाहे कहीं पे भी हो, पुलिस ऑफिसर को दे रहे हो कन्फेशन तो इनएडमिसिबल है। 27 ये कह रहा है कि अगर आप पुलिस कस्टडी में हैं तो पुलिस कस्टडी में आपने कन्फेशन दिया है, किसी को भी, किसी को कन्फेशन दिया आपने, पुलिस ऑफिसर की बात नहीं कर रहा है 26 में। 26 में कह रहा है कि अगर आप पुलिस कस्टडी में हो सकता है आपने को प्रिजनर को आपने कुछ स्टेटमेंट दिया, हो सकता है आपसे कोई मिलने आया जेल में, उस कस्टडी में, जब आपसे पुलिस कस्टडी में मिलने आया उसको कोई कन्फेशन दे रहे हो तो वो नहीं माना जाएगा। डॉक्टर आया आपसे मिलने पुलिस कस्टडी में अंदर, जेल के अंदर, आप उसको कोई कन्फेस कर रहे हो, कन्फेशन दे रहे हो, वो भी इट शैल आल्सो नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन प्रोवाइडेड दैट अनलेस एंड अनटिल इट हैज बीन मेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। यानी कि पुलिस कस्टडी में अगर हो आप और ऐसे बंदों के सामने, डॉक्टर के सामने, को प्रिजनर आपका साथी है उसके सामने कुछ कन्फेशन दे रहे हो या किसी और को दे रहे हो तो नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट दे रहे हो, भले ही आप पुलिस कस्टडी में हो, इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट दे रहे हो, देन इट शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, देन इट शैल बी एडमिसिबल। इतना समझ में आ रहा है क्लियरली? तो 25 और 26 अपने आप में अलग अलग रूल हैं।
आप इसको कुछ कंफ्यूज मत होना। neither 26 govern the section 25, neither 25 govern the section 26. Both are different rules, both are separate rules, so no need to get confused between section 25 and 26. समझ में आ गया? अब थोड़ा सा 25 में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई कस्टम ऑफिसर के सामने अगर किसी ने कन्फेशन किया तो बताइए वो एडमिसिबल है या नहीं है। enforcement officer is there, if any accused person has made confession before the enforcement officer, so it shall be admissible or not. So you need to understand the concept of police. तो पुलिस जब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि पुलिस किसे कहते हैं, तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि किस बंदे के सामने कन्फेशन दिया गया तो एडमिसिबल होगा या नहीं होगा, है ना। तो पुलिस एक्ट की जो हम लोग देखते हैं, पुलिस ऑफिसर को टर्म है जो स्ट्रिक्टली टेक्निकल सेंस में आपको नहीं देखने की जरूरत है। अंडर टाडा एंड पोटा कन्फेशन बिफोर एनी ऑफिशियल इज एडमिसिबल। यस, टाडा कह रहे हैं कि टाडा के अंडर में किसी ऑफिसर के सामने आपने किया, तो कहने का सेंस है ये हमेशा नहीं कि जो आप पुलिस देखते हो टेक्निकल सेंस में उन्हीं के सामने किया जाएगा तो ही इनएडमिसिबल है, नहीं। टाडा के अंडर में जो ऑफिसर होते हैं वो भी पुलिस ही होते हैं। पोटा के अंदर में जो ऑफिसर होते हैं, आपको कुछ कन्फेशन उसके सामने किया वो भी इनएडमिसिबल होगा या एडमिसिबल होगा, देखेंगे अभी हम, है ना। तो इस टेक्निकल सेंस में देखें, बट अकॉर्डिंग टू इट्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड पॉपुलर मीनिंग इट इंक्लूड्स एन ऑफिसर वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ पुलिस बाय लॉ, whether he is called a police officer or any other name, and exercises other function also under other provision of law. तो सिर्फ पुलिस एक्ट के अंडर में जो सेक्शन 1 में डिफाइन है पुलिस, उसी पुलिस की बात नहीं की जा रही है इस सेक्शन 25 में। As far as the section 25 is concerned, they have used the word police officer, so the definition has been given under the police act. तो उसी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं आपको लेना है, ये थोड़ा वाइड टर्म में आपको लेना है। मींस नाम कुछ भी हो सकते हैं उसके, हो सकता है उसका नाम इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो सकता है उसका नाम कस्टम ऑफिसर हो सकता है उसका नाम कुछ और हो, लेकिन अगर वो पुलिस का काम कर रहा है, इफ ही इज एक्सरसाइजिंग द पुलिस एक्शन एज पर लॉ, एज पर पुलिस एक्ट, तो इट शैल बी कंसिडर्ड एज अ पुलिस ऑफिसर। आपको समझ में आ रहा है? जैसे कस्टम ऑफिसर हो गया, तो कस्टम ऑफिसर को पुलिस की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो व्हाटएवर द स्टेटमेंट्स यू हैव मेड, व्हाटएवर द कन्फेशन यू हैव मेड बिफोर द कस्टम ऑफिसर, इसको यूज किया जा सकता है, ये एडमिसिबल होगा एज एविडेंस। समझ में आ गया? भाई आप जा रहे थे एयरपोर्ट पे, आपको पकड़ लिया, आपने कुछ रखा था, आपने उसको बोला हाँ साहब ये है ड्रग है, मैं कन्फेस करता हूँ, तो उसको कोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इनएडमिसिबल नहीं होगा। There is a case judgment in this regard, Village Administrative Office versus AP Andhra Pradesh. अच्छा ठीक है, yes we will see it. ठीक है जी। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, अब पावर ऑफ अरेस्ट, सर्च एंड कस्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट सीज्ड वर अनडाउटेडली गिवन टू द इन्फोर्समेंट ऑफिसर, है ना। सेक्शन 19A, 19B, 19C, 19D, 19G, जब आप देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से, तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर को भी ये सब पावर्स दिए गए हैं कि वो अरेस्ट कर सकता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को सीज कर सकता है, वो आपके बैग को चेक कर सकता है, सर्च कर सकता है। सो दीस पावर्स हैज बीन गिवन टू द इन्फोर्समेंट ऑफिसर आल्सो एज पर सेक्शन 19A, 19B, 19C ऑफ Conservation of Foreign Exchange Regulation Act है उसके लिए। But nevertheless, the fact remains that such powers are more akin to those conferred on the custom officer by the Custom Act. It is as such pertinent to note that custom officer is not a police officer as held by the Supreme Court in Ilyas versus Collection of Customs. One case is there, Ilyas versus Collector of Customs, Madras. It was held by the Supreme Court that the custom officer is not the police officer. So they may ask the question in the prelims whether the confession made to the custom officer is admissible or not, like this. Maybe 4 option will be there, admissible, inadmissible, दे सकते हैं ऐसे 4 ऑप्शन, कुछ भी, तो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, एनडीपीएस एक्ट एक होता है, कन्फेशन मेड बिफोर ऑफिसर अंडर एनडीपीएस। सो एनडीपीएस एक्ट के अंडर में 1985 के अंडर में कोई ऑफिसर, उसके सामने आपने कन्फेशन किया तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस who have been vested with the powers of an officer in charge of the police station under section 53 of the NDPS Act or not police officer within the meaning of section 25 of the Evidence Act. तो ये भी पुलिस ऑफिसर नहीं है। तो ऐसे एक चीज आपको याद करनी होगी, देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और, 25 जो बोलता है ना
कि पुलिस ऑफिसर के सामने आपने कन्फेशन किया तो वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। तो ये सिर्फ क्रिमिनल केस के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। पुलिस ऑफिसर के सामने आपने कन्फेशन दिया तो वो कहीं पे भी किसी भी पर्पज से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है ये, ठीक है। तो सेक्शन 25 मेक्स ए कन्फेशन टू ए पुलिस ऑफिसर इनएडमिसिबल अगेंस्ट द एक्यूज्ड इन ए क्रिमिनल ट्रायल, बट इट इज नॉट मेड इनएडमिसिबल फॉर ऑल पर्पस। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको इस्तेमाल किया जा सकता है जो भी कुछ उसने पुलिस ऑफिसर के सामने कहा उसको इन फेवर ऑफ द कन्फेसिंग एक्यूज्ड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस और इन फेवर ऑफ ए को एक्यूज्ड के फेवर में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है ना। या अदर सिचुएशन अदर सर्कमस्टांसेस में उसको कहीं ना कहीं यूज किया जा सकता है। तो ये कन्फेशन रिकॉर्डेड अंडर टाडा एक्ट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व, ये केस था करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, ये 1994 का था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्व किया था कि इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सेप्ट द कंटेंशन दैट एन अक्यूज्ड वर इन पुलिस कस्टडी, द कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आर नाइदर एडमिसिबल इन एविडेंस नॉर रिलायबल। Custodial interrogation in such cases is permissible under law to meet the grave situation arising out of the terrorism unleashed by terrorist activities by person residing within or outside the country. Defense contention that the guidelines suggested in Kartar Singh versus State of Punjab was not followed in without any basis because in the present case confessional statements were recorded prior to the decision in that case. Said guidelines are neither incorporated in the act nor in the rules made by the parliament. Supreme Court has added that this court did not hold in Kartar Singh's case that if suggested guidelines are not followed then the confessional statement would be inadmissible in evidence. तो ये आपको देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्व किया था कि इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सेप्ट द कंटेंशन that as the accused were in police custody of the confessional statements are neither admissible in evidence nor reliable. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अगर पुलिस कस्टडी में कन्फेशनल दिया है, कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया तो उसको इग्नोर किया जाए और बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। तो अब एक केस और था इन अब्दुल वहाब वर्सेस अब्दुल मजीद शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। Abdul Wahab, Abdul Majid Sheikh versus State of Gujarat. Accused was arrested by the police and as he expressed his willingness to make a confession, he was produced before the Deputy Commissioner of Police, DCP, and told that he was not legally bound to give a voluntary statement and that in case any statement is found to be false, it would be used against him. DCP had taken all precautions to ascertain that the confession was voluntary. All formalities had been complied with and these facts were incorporated in the confessional statement. There is nothing on record to show that the accused was under pressure to give any confession. When he was produced before the magistrate, he had no case that he was put under pressure or third-degree methods had been used against him to extract the confession. When he was questioned under section 313 CRPC के तहत उससे section 313 के according उससे question पूछा गया, he had only stated that he had not given any confession as recorded by the DCP. Facts indicated that the confession was voluntary and was recorded by the DCP after apprising him that he was not bound to give a confession and in case he gave the confession, it would be used against him. Therefore, there is no force in the contention of the accused appellant regarding the inadmissibility of the confession. ठीक है, इसको देख लेना। तो ये हमारा हो गया कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, ये 25 देख लिया हमने। 26 को भी देख लेते हैं फटाफट। ये कह रहे हैं कन्फेशन बाय एक्यूज्ड while in custody of police not to be proved against him. तो ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस कस्टडी में भी कन्फेशन दिया गया तो वो भी इनएडमिसिबल होगा। देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन whilst he is in the custody of a police officer unless it is made in the immediate presence of a magistrate shall be proved as against such person. So already मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। पुलिस कस्टडी की बात यहाँ पे हो रही है। पुलिस कस्टडी के आप अंडर में है तो आपने किसी को भी कन्फेशन दिया है तो वो इनएडमिसिबल होगा। हाँ, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट आपने दिया है, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट आपने दिया तो वो एक्सेप्टेबल होगा, एडमिसिबल होगा। तो वो 25 अलग कह रहा है, 26 अलग कह रहा है, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। ठीक है। So section 25 bars a confession made to the police officer whether confessor is in the custody of the police or not. 25 को मैंने ध्यान में रखना। 25 बात करता है कि पुलिस ऑफिसर के सामने आपने कन्फेशन दिया है, चाहे आप पुलिस कस्टडी में हैं या नहीं है, कहीं पे भी है, बाहर भी आपने पुलिस ऑफिसर के सामने दिया कन्फेशन कुछ, तो वो भी मान्य नहीं होगा, वो भी इनएडमिसिबल होगा।
यहाँ 26 में बात करता है पुलिस कस्टडी में है आप, अब पुलिस कस्टडी में है तो किसी को भी आप कन्फेशन देंगे तो वो नहीं माना जाएगा। हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट आप देंगे तो वो माना जाएगा, ये बात करता है। अच्छा, कस्टडी 26 और 27 में कस्टडी की जो बात की जा रही है वो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों जो है एक ही कस्टडी की बात की गई है, यानी कि फॉर्मल एक्यूजिशन या अरेस्ट इज नॉट नेसेसरी टू कंस्टिट्यूट कस्टडी एज अंडरस्टूड इन सेक्शन 26 और 27। फॉर्मल एक्यूजिशन आप पे लग गया या फॉर्मल अरेस्ट हो गया तो उसको हम कस्टडी नहीं बोल देंगे। A person is in custody from the time when he either is an accused or as a suspect comes into the hands or surveillance of a police officer and cannot leave। कस्टडी में तब आपको कहा जाएगा कि आप कस्टडी में है जब आप सस्पेक्टेड थे, जब आप एक्यूज्ड थे, जब आप पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में आ गए, अब आपको छोड़ा नहीं जा सकता, उसको हम कस्टडी बोलेंगे। इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट का मतलब आप समझ गए होंगे। ए कन्फेशन इज एडमिसिबल इफ मेड टू ए मजिस्ट्रेट और टू ए पर्सन अदर देन ए पुलिस ऑफिसर बट इन the immediate presence of the magistrate, but it will be inadmissible if it is made to a police officer even in the presence of a magistrate। और one thing more, पुलिस कस्टडी में भी है आप, पुलिस कस्टडी में है और आपने पुलिस के सामने जो है कन्फेशन दिया, भले ही मजिस्ट्रेट के सामने आपने कन्फेशन दिया तो वो भी इनएडमिसिबल होगा। सो एनी कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर बट इन प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट इज ऑल्सो इनएडमिसिबल, वो इनएडमिसिबल होगा। समझ में आ गया? तो बेसिकली आप चाहे 25 की बात करें चाहे 26 की बात करें, ये आप एकदम रूल मान लो कि पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी कन्फेशन नहीं माना जाएगा। ये हमारा हो गया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहे मजिस्ट्रेट डज नॉट इंक्लूड द हेड ऑफ ए विलेज डिस्चार्जिंग मजिस्ट्रियल फंक्शन। ठीक है, तो देख लेना। 27 क्या कहता है? हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। अब ये कह रहे प्रोवाइडेड दैट व्हेन, प्रोवाइडेड दैट मींस कि मे बी से दैट it is just section 27 is just in continuance of the section 25 and 26 because it starts from the provided that means लगता है कि इससे पहले कुछ बात कही गई है फिर provided that करके स्टार्ट हो रहा है। provided that when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offense in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered may be proved। मैं आपको जब अभी 25 पढ़ा रहा था तो मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि ठीक है पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी कन्फेशन किया जाए इट शैल नॉट बी एडमिसिबल, ठीक है, लेकिन हमने ये भी आपको बताया कि सब्जेक्ट टू द सेक्शन 27 आपको पढ़ना है उसको। अब 27 क्या है? जो 24 से लेके 26 हमने पढ़ा है अभी, ये एक्सक्लूजन ऑफ कन्फेशन के रूल्स को बताते हैं कि कहाँ कन्फेशन नहीं माना जाएगा, कहाँ कन्फेशन एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको नजरअंदाज कर दिया जाएगा, नहीं माना जाएगा। 24 मना करता है कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट। 25 मना करता है कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर शैल आल्सो बी एक्सक्लूडेड। 25 बात करता है पुलिस कस्टडी में आपने किया है ना। ऐसे ही 26 बात करता है, 26 किस चीज की बात करता है? हाँ, कन्फेशन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव, ठीक है। 26 बात करता है पुलिस कस्टडी वाला। तो कहने का सेंस ये है कि confession made by the accused while in police custody, but although such improperly obtained confessions are inadmissible under these provisions, they may lead to the discovery of facts, things, documents, etc. in consequence of some information contained in the confession made by the accused in custody। होता क्या, जब आप पुलिस कस्टडी में होता है accused, पुलिस ऑफिसर के सामने पुलिस कस्टडी में है वो accused, तो जो भी उसने कन्फेशन दिया है, कई इंफॉर्मेशन उसकी ऐसी है कि वो सच है ना। जैसे मान लिया कन्फेशन के दौरान वो बोल दिया कि हाँ मैंने ही उसको चाकू से मारा था, तो अब पुलिस उस पे इस इंफॉर्मेशन पे पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है ना। पुलिस डज इन्वेस्टिगेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन व्हाट ही गेव इन द पुलिस कस्टडी व्हाइल ही वाज इन पुलिस कस्टडी, द पुलिस डज द इन्वेस्टिगेशन और वहां पे जो क्राइम सीन था वहां पे जाके सही में पता चलता है कि वहां चाकू पाया गया, तो कहीं ना कहीं मैच हो रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं 27 में? प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड in consequence of the information received from a person, means
if a person gives any information while making confession and on the basis of that information कुछ चीजें डिस्कवर्ड हो गई हैं, जैसे कि उसने कहा कि मैंने चाकू से मारा था और चाकू पे वहीं गाड़ दिया, मैंने चाकू को छुपा दिया, तो सच में पुलिस गई वहां पे इन्वेस्टिगेशन करती है, सर्च करती है, सच में वहां से निकला चाकू जहां क्राइम सीन था। तो कह रहे कोई भी अगर फैक्ट है which is disposed to as discovered in consequence of the information received from a person accused of any offense in the custody of a police officer. So much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved. So much of that information may be proved. तो उतना इंफॉर्मेशन उसको प्रूव किया जा सकता है ना। फिर अब ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं नहीं ये तो पुलिस कस्टडी में 26, 27 को कोरिलेट करके पढ़ लेना। फिर ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं नहीं पुलिस कस्टडी में बोला है, जो कुछ बोलेगा नहीं मानेगा। नहीं, अगर उसने कुछ बोला है और सच में वो बात निकल जाती है डिस्कवरी में, इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर रेलेवेंस रखेगा उसका, ये बताने का मतलब था। ठीक है, चाहे वो कन्फेशन हो या इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, तो अपने आप में ये होगा। तो स्कोप अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सेक्शन 27 इज दैट इट इज एन एक्सेप्शन टू द एक्सक्लूजनरी रूल्स इनैक्टेड इन सेक्शन 24, 25, 26। मैं ऐसे लाइक दिस एक्सेप्शन नहीं है 27। आपको नहीं लगता कि पहले तो हमने ये पढ़ लिया कि पुलिस ऑफिसर के सामने या वो इंड्यूसमेंट या कॉज और थ्रेट में कोई आपने कन्फेशन दिया है तो वो नहीं माना जाएगा। 25 में हमने ये पढ़ लिया कि पुलिस ऑफिसर के सामने आपने कन्फेशन किया, वो नहीं माना जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। 26 में आपको ये पढ़ा है कि पुलिस कस्टडी में आपने कोई कन्फेशन दिया है, वो नहीं माना जाएगा। लेकिन 27 में आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि इन तीनों सिचुएशन में अगर एक्यूज्ड ने कोई इंफॉर्मेशन दिया है या कन्फेशन किया है, वो चाहे कन्फेशन हो चाहे कोई सिंपल स्टेटमेंट हो, उसके बेसिस पे पुलिस वाले सच में कुछ डिस्कवर कर लेते हैं, तो वो जो उन्होंने डिस्कवरी की, अब वो जो पुलिस, जैसे मान लिया एक्यूज था पुलिस कस्टडी में, उसने बोल दिया कि हाँ साहब मैं उस टाइम था, चाकू जो है मारा था मैंने उसको, तो चाकू गाड़ दिया था वहीं पे। और पुलिस ऑफिसर जाती है वहीं से चाकू डिस्कवर भी कर लेती है। तो वो चाकू का डिस्कवर हो जाना, ये जो फैक्ट है वो कोर्ट में वो रख सकते हैं। कोर्ट उनसे ये नहीं बोलेगी नहीं नहीं आपके सामने इसने बोला था ना, आप ही सामने बोला है ना, इसने कन्फेस किया है या इन्फॉर्मेशन दिया, वो नहीं मानेंगे आप। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि अरे भाई वो बोला तो हमने थोड़ी चाकू वहां पे जाके रख दिया, पुलिस वाले ने थोड़ी जाके गाड़ दिया था, वो तो सच में निकला वहां से। तो इट मींस कि जो इन्फॉर्मेशन उसने दी थी पुलिस कस्टडी में वो सही है। अब आपको समझ में आया 27 को क्यों 24, 25, 26 के कोरिलेशन में पढ़ना है? So you have to go by like this 24, 25, 26. Also, you have to read all these three sections subject to the condition mentioned in section 27. So 27 you may say this is exception. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ exception है, exception to section 24, 25, 26 है ना। ये 24, 25, 26 एक्सक्लूजनरी रूल्स है, एक्सक्लूड करती है कन्फेशन को, लेकिन ये इंक्लूड करता है। अच्छा, डिस्टिंक्टली कहीं वर्ड आया है, ठीक है। तो सेक्शन 27 क्वालिफाइज सेक्शन 24, 25 और 26, आप ऐसे लिख देना। सेक्शन 27 है नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ एंड बीईएपी टेस्ट। ठीक है, इसको देख लेना। अगर हम इसेंशियल की बात करें, 27 की इसेंशियलिटी की बात करें कि क्या क्या इसेंशियल है 27 में, तो आप बोल देना कि फैक्ट ऑफ विच एविडेंस इज sought to be given must be relevant to the issue, है ना। whatever the fact, whatever the information has been sought by that accused person, वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कहीं ना कहीं वो रेलिवेंट होना चाहिए टू द इशू, है ना। अब ये नहीं वो कस्टडी में वो बोल रहा है कि मैं फलाना तारीख को मैं कैरम खेल रहा था, तो मर्डर का कैरम खेलना क्या मतलब, तो कैरम जो भी इंफॉर्मेशन दे वो इररिलेवेंट होगा ना, तो आप उसको फिर नहीं प्रोड्यूस कर सकते कोर्ट में। It must be borne in mind that the provision has nothing to do with question of relevancy, ठीक है। दूसरा कंडीशन इसेंशियल ये है 27 का, फैक्ट मस्ट हैव बीन डिस्कवर्ड इन कंसिक्वेंस ऑफ सम इंफॉर्मेशन। फैक्ट मस्ट हैव बीन डिस्कवर्ड, ये यहाँ पे fact must have been discovered by the police officer in consequence of that information, the information given by the accused person while he was in custody। हाँ, तो आपको ध्यान में देना है इंफॉर्मेशन में और मे नॉट अमाउंट टू ए कन्फेशन। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन कन्फेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहाँ पे दोनों बात कह रहे हैं ना, कन्फेशन इट अमाउंट्स टू वेदर इट अमाउंट्स टू ए कन्फेशन और नॉट, सो द इंफॉर्मेशन मे और मे नॉट बी द कन्फेशन।
person giving the information must be accused of any offense. The person who is giving the information must be the accused of the offense. फिफ्थ है he must be in the custody of the police officer, है ना, वो कस्टडी में होना चाहिए पुलिस ऑफिसर के. अब कस्टडी का मतलब कस्टडी कैन नॉट बी सेड टू मीन ओनली व्हेन द अक्यूज्ड इज एक्चुअली टेकन इनटू कस्टडी बाय द पुलिस ऑफिसर. कस्टडी का मतलब आप ये मत समझो कि सच में एकदम ओरिजिनली उसको जब पुलिस कस्टडी में रखा है तभी उसको कस्टडी कहा, नहीं. अरे भाई उसको पुलिस ऑफिसर, 4 पुलिस ऑफिसर घेर लिए हैं, उसको उसकी आजादी को, उसकी फ्रीडम को कैप्चर कर लिए हैं, उससे पूछताछ करो, उसको भी आप कस्टडी कह सकते हो. कस्टडी का मतलब थोड़ी थाने में ले जाके ताला बंद कर दिया वही कस्टडी होगा. डिस्कवरी मस्ट बी रिलेटेड टू द फैक्ट डिपोज्ड टू, ठीक है, and thereupon that portion only of the information which relates distinctly to the facts discovered can be proved, rest of the statements of the accused being inadmissible. ठीक है, तो इसको देख लेना आप लोग. अच्छा सेक्शन था, तो साथ में पढ़ के लेके चलना है आपको. अब 28 को हम लोग देख लेते हैं. 28 क्या है? 28 confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise relevant. If such a confession as is referred to in section 24 is made after the impression caused by any such inducement, threat or promise has, in the opinion of the court, been fully removed, it is relevant. अब यहाँ पे क्या कहने का मतलब है? ये कहना कि मान लिया 24 में क्या था? 24 में क्या था? 24 में था कि भाई आपने कन्फेशन इंड्यूस करके लिया है या थ्रेट करके लिया है या प्रॉमिस करके लिया, तो वो इनएडमिसिबल हो जाएगा. 28 में क्या कह रहे हैं कि अगर इन डिफिशिएंसी को रिमूव कर दिया गया तो उसके बाद कन्फेशन रेलेवेंट बन जाता है. यानी कि 28 लेस डाउन द कंडीशन अंडर विच कन्फेशन रेंडर्ड इररिलेवेंट बाय सेक्शन 24 में बिकम रेलेवेंट. कहां पे 24 में जो कन्फेशन दिया गया था वो रेलेवेंट हो जाता है, वो सेक्शन 28 बताता है. कहना कि confession is admissible after the impression caused by inducement etc. has been fully removed because it then becomes free and voluntary. The confession is mentioned in the section should be voluntary and received as a result of reflection and free determination, unaffected and uninduced by original threat or promise. मान लिया 24 के अंडर में आपको किसी ने धमकी दिया था और धमकी दिया था, आपने आपसे कुछ कन्फेशन निकलवा लिया, आपको बुलवा लिया उसने. बाद में ये पता चलता है कि आप वो धमकी नहीं दे रहा है और आप खुद अपनी स्वेच्छा से मान ले रहे हो, तो जो आपने पहले स्टेटमेंट दिया था वो रेलेवेंट हो जाएगा फिर, है ना. पहले आपने थ्रेट में दिया था, अब आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं डर गया था, लेकिन अब मैं होश हवास में कह रहा हूँ, अपने मैं जो बोल रहा हूँ अपनी मर्जी से वॉलंटरली बोल रहा हूँ, देन इट शैल बिकम रेलेवेंट. रेलेवेंट हो जाएगा. 28 ये कहता है. 29 में देख लेते हैं. कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट नॉट टू. अच्छा, 24 से लेकर 30 तक ये पूरे कन्फेशन के बारे में बात करता है, ये आप ध्यान रखिएगा. Confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy etc. There are confession otherwise relevant not to become irrelevant. There are, if such a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy or in consequence of a deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk, or because it was made in answer to questions which he need not have answered, whatever may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to much. Such confession makes such confession and that evidence of it might be given against him. तो क्या 29 कहता है? 29 में अगेन वेरी सिंपल है, इसमें जो प्रिंसिपल है 29 में, confession which is shown to be otherwise relevant does not become irrelevant merely because of the circumstances like breach of promise of secrecy. यानी कह रहे हैं अगर एक confession relevant होता, otherwise relevant है, लेकिन महज इसलिए ताकि प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी हो गया, है ना, डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड हो गया, तो इसकी वजह से वो इररिलेवेंट नहीं हो जाएगा, ये बोल रहे हैं. प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ ए कन्फेशन इज इट्स टेस्टिमोनियल इंटरेस्ट, वर्दीनेस, इनवॉलंटरी कैरेक्टर, एंड हेंस ए कन्फेशन obtained by deception etc. is not deemed to be irrelevant. Thus, the general principle is that the illegality of the source of evidence of the use of deception or immoral practice in obtaining it does not affect its reception. तो स्कोप की अगर हम बात करें तो ये सेक्शन जो है 5 नॉन इनवैलिडेटिंग ओरिजिन्स ऑफ ए कन्फेशन की बात करता है. पहला कहता है प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी, दूसरा कहता है डिसेप्शन, यहाँ पर लिख दे रहा हूं. पहला है प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी, प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी, दूसरा है डिसेप्शन, तीसरा है
ड्रंकनेस, ड्रंकनेस। चौथा है इंट्रोगेशन। पांचवा है वांट ऑफ वार्निंग। ठीक है, तो सेक्शन 29 refers to such confession only as are not governed by or contemplated in section 24 to 28। 24 से लेकर 29 के अलावा और कोई कन्फेशन है, कन्फेशन नॉट मेड टू मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर या पर्सन इन अथॉरिटी, उनके अलावा और कोई कन्फेशन है तो उसकी बात कहता है। This section is meant to dispel doubts with respect to extrajudicial confession made under circumstances similar to those which make judicial confession inadmissible। Confession otherwise relevant का मतलब पहले हम समझते हैं क्या है। If a confession is not obtained by any inducement, 24 वाला जो था, or if it is not a confession made to the police officer, 25 वाली बात, or it is not, if it is not a confession made while in police custody to any person other than a magistrate, 26, and if a confession does not violate any one of the conditions operative under section 24 से लेकर 28 of the Evidence Act, it will be admissible in evidence। समझ में आया आपको? 29 में ऐसे कन्फेशन की बात कर रहा है, ना तो वो पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया है, ना वो पुलिस कस्टडी में किया गया है, ना वो किसी इंड्यूसमेंट या थ्रेट या प्रॉमिस करवा के लिया गया है। लेकिन कन्फेशन जो किया गया है, ये जो 24 से लेकर 28 तक आपको पढ़ाया गया, उसके कहीं भी किसी भी प्रोविजंस को वायलेट नहीं कर रहा है। इफ ए कन्फेशन डज नॉट वायलेट एनी वन ऑफ द कंडीशन ऑपरेटिव अंडर सेक्शन 24 टू 28, तो ऐसे कन्फेशन जो है एडमिसिबल इन एविडेंस होंगे। ठीक है, but as in respect of any other admissible evidence, oral or documentary, so as in the face of confessional statement which are otherwise admissible, the court has still to consider whether they can be accepted as true। ठीक है, अब प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी का मतलब, डिसेप्शन का मतलब क्या हो रहा है, ये देख लेते हैं। डिसेप्शन में पहले हम आते हैं, डिसेप्शन को समझते हैं। ये कह रहा है कि अगर कोई कन्फेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम ए प्रिजनर ऑन हिज बीइंग गिवन टू अंडरस्टैंड that his brother-in-law had given out that the prisoner was guilty, the confession was held admissible। तो डिसेप्शन का मतलब क्या होता है कि आपने कन्फेशन ऑब्टेन किया है एक प्रिजनर से, on his being given to understand that his brother-in-law had given out that the prisoner was guilty, the confession was held admissible। तो डिसेप्शन का मतलब ये होता है कि आपने किसी प्रिजनर से ये कहा कि यार तुम्हारा जो साला है वो तो कह रहा है तुम गिल्टी हो, ये कह के आपने उससे कुबलवा लिया, तो ये एडमिसिबल होगा, क्योंकि ये कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, ना तो थ्रेट है, ना तो प्रॉमिस है। 24 का भी वायलेशन नहीं है। तो 24, 25, 26, 27, 28 के वायलेशन किए बिना अगर मैं किसी से कन्फेशन ले लेता हूं और कोई कन्फेशन बनाता है, कहता है, तो वो कन्फेशन एक्सेप्टेबल होगा, एडमिसिबल होगा, भले ही वो डिसेप्शन के द्वारा लिए गए हो या प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी के द्वारा लिए गए हो, है ना। यानी कि मैं सामने वाले से प्रॉमिस कर लूं, यार तुम बता दो मुझे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बताओ तो तुम ही मारे थे उसको, इस तरीके से मैं उसको पूछ रहा हूँ, अब बोल रहा हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बता दो, तो वो मुझे बता दिया, तो वो कन्फेशन भी एडमिसिबल होगा। ड्रंकनेस, ड्रंकनेस मतलब वो पिए हुआ था, पिए पिए में कह दिया, तो महज he was drunk, his confession cannot be ignored। if he would have not drunk and if he would have made the same statement when he was not drunk, that statement relevant होता। अगर वो पिए नहीं होता तो वो बात कहता तो relevant होता। तो यही बात, confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy, because of drunkenness। यानी कि अगर वो पिए नहीं होता तब वो जो बात कहता तो relevant होता। तो अगर वो पी के ऐसी बात बोल रहा है तो इसका मतलब नहीं सिर्फ पीने की वजह से कि ड्रंकनेस है उसकी बात को खारिज कर दिया, नहीं, तब भी वो relevant होगा, वो irrelevant नहीं होगा। समझ में आ रही है बातें, चीजें आपको? ठीक है, ये सब बात हमने सीख लिया। 30 रह रहा है, 30 देख लेंगे, कंसिडरिंग अप्रूव्ड कन्फेशन एक्टिंग। ठीक है, ज्यादा टाइम हो गया, 30 देख लेंगे, एक सेक्शन है छोटा सा कन्फेशन के ऊपर, उसके बाद हम लोग कन्फेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया है, बस एक सेक्शन है तो उसको देख लेंगे।
तो इसके बाद अपार्ट फ्रॉम कन्फेशन हम लोग बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।